Good morning, everybody. Last day I have given you some question to do the factorization. So I would like to start with some of the selective question. So I have just selected question number 8. Try to understand. So you see that question number 8 was the m square plus 17mn minus 84n square. Now actually this is not in the general form of the quadratic trinomial, but you can also split this term. So here the value of the a is the coefficient of m square, that is the 1. Value of the coefficient of the mn is 17, that is the b, and the constant part is the minus 84. Now multiply a and c. So 1 into minus 84, we have got here minus 84. Now 17 has to be broken up into the two parts so that the multiple of these two should be the minus 84. So what we have done, and already I told you that if you wanted to split a number into two parts such that the multiple of these two should be a negative, so one number should be 100% negative, because the plus and minus will only give you the answer negative. So we have split the 17 into the form 21 and 4, because when you are going to multiply 20 and 4, you will get minus 84, and 21 minus 4, when you are going to add this thing, you will get 17 only. So 17mn has been split into the 21mn and minus 4mn, and here minus 84n square. Now one more thing is that if you are going to write these term as minus 4mn प्लस 21mn, मतलब ये टर्म को आप पहले और ये टर्म को आप बाद में लिखते हो. अगर आप सोचते हो कि ऐसा लिखने से कुछ एरर हो सकता है, तो आई टेल यू देयर विल बी नो एरर. ऐसा कुछ भी आप इसको अगर पहले इसको बाद में लिखोगे तो एरर नहीं होगा. फाइनल आंसर यू विल गेट द सेम ओनली. So here in these two terms what I see that only m is common, तो m is left and plus here 21n, और इन दोनों में आप कॉमन देखते हो 4n कॉमन है. यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ m, and here plus 21. Now you see that in these two brackets the terms are same. Now one more thing I would like to tell you, that whenever you are going to do the middle term split, in these two brackets all the terms should be equal with their sign. मतलब ये दोनों टर्म जो है बिल्कुल एक दूसरे के कार्बन कॉपी होने चाहिए. कार्बन कॉपी मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है वो सेम टर्म होना चाहिए, उसका जो भी साइन है वही होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये 21n प्लस में है तो यहाँ भी 21 प्लस में है. ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस में हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दीज टू टर्म्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, इट मीन्स either you have done the wrong in what we can say, आपने कहाँ गलती किया है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपने से प्रॉपरली नहीं किया है, या आपने कॉमन प्रॉपरली नहीं निकाला है. Got it? So in these two parts you can see that m plus 21 is the common. So what is left here? m minus 4n. तो ये इसका factorization है. Now 24x square minus 41x plus 12. तो here a value is 24, b value is the minus 41, c value is the 12. a and c का मल्टीपल 24 into 12, that is the 288. अब यहाँ पे b का वैल्यू माइनस 41 है, इसको स्प्लिट करना है सो दैट दीज टू टर्म, द मल्टीपल ऑफ दीज टू टर्म शुड बी 288. अब यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव टर्म को टू पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपको पॉजिटिव 288 चाहिए. तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है. आइदर दीज टू टर्म शुड बी इन द पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस आएगा, और द टू टर्म शुड बी द नेगेटिव, बिकॉज द माइनस एंड माइनस इज ऑल्सो द प्लस in the multiple form. So we have just split minus 41 into the minus 32 and minus 9. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 288 आ जाएगा. उसके बाद मैंने यहाँ पे माइनस 41 को स्प्लिट करके लिखा है माइनस 32x, और यहाँ पे लिखा है माइनस 9x, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे तो वापस से आपको माइनस 41x आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस 288 आएगा. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टेकन आउट 8x कॉमन हेयर, एंड हेयर माइनस 3 कॉमन, और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, 8x माइनस 3 इज लेफ्ट. तो दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट. So in this question you see that one term or one of the coefficient is in the fraction form. जैसे x स्क्वायर का coefficient 1/3 है, और यहाँ पे इसका ये -2x है, और यहाँ पे 9 है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में खुद से 1 पुट करता हूँ, और 311 का एलसीएम लेता हूँ. 311 का एलसीएम 3. नाउ 3 और 3, तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर लिखोगे. नाउ 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो माइनस 27. अब यहाँ पे देखो 3 जो है इन तीनों टर्म्स के कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैं सीधा उसको कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ.
फैक्टराइजेशन हम लोग करते क्या है, सिर्फ कॉमन निकालते हैं। तो अब देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो सीधे मैंने इसको बाहर निकाला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, अब ये बहुत ही सिंपल है स्प्लिट करना, तो मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाया है। वन मोर थिंग कि whenever you are going to solve the middle term split, it is not always right to always not needed to just show these all step। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, whenever you are going to solve in the copy you can directly split it। तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस 27 का मल्टीपल माइनस 27 है, तो माइनस 6 को स्प्लिट करना है, तो आई कैन जस्ट राइट हियर माइनस 9x एंड प्लस 3x। मल्टीप्लाई करने पे माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 और माइनस 9 प्लस 3 दैट इज माइनस 6। तो फ्रॉम दीज टू आई टेकन x एज अ कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे सिर्फ 9, इन दोनों से मैंने 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे 9। नाउ फ्रॉम दीज टू पार्ट व्हाट आई सी दैट x माइनस 9 इज अ कॉमन एंड हियर इज द x प्लस 3 इज लेफ्ट ओनली। So the factorization of these term is this only. Now one more thing is that if you wanted to multiply 1 by 3 is outside, if you multiply with the anyone, you suppose 1 by 3 I multiply by this one, तो 1 by 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 by 3 x by 3 और 1 by 3 इंटू 9, तो आई कैन राइट हेयर दिस 3 टाइम्स विल कैंसिल, तो 3 एंड सेकंड ब्रैकेट हेयर। तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। Now one the general problem they are facing the student, what they will do in this question, that 1 by 3 they will multiply with this also and 1 by 3 they will multiply this also। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है और ये मल्टीप्लाई अगर a और b के साथ में है तो इसका आंसर मैं यहाँ पे 2a प्लस 2b लिखूंगा। लेकिन अगर ये 2 ब्रैकेट में है और यहाँ पे a और b मल्टीपल में है तो सीधा आप 2ab करोगे। आप तो सिर्फ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ पे 2 को तो b से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल में है। तो आप ये देखो कि ये 2 टर्म ऑलरेडी मल्टीपल में है और यहाँ पे 1 by 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप किसी भी एक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आप 2 को मैंने a से मल्टीप्लाई करके बाकी वैसे छोड़ दिया। I hope you have understood that why 1 by 3 has only multiplied with the only these term only, not this term, because these two term are not in the multiple, these two term are not in the addition form। अगर addition में होता तो बाहर के जो common number है वो दोनों से multiply होते हैं, but ये multiple में है, आप किसी एक को multiply करोगे, this is the final answer। Okay, now the next type of the question that we are going to discuss, this is a type, this is the root question, root type of question, and generally the students have the fear in solving such type of question which contain the root। तो I tell you do not hesitate, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आप क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एक्सपेंडेशन ब्रेकिंग करने आप जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। डू नॉट बी हेजिटेट, द मेथड इज सेम। 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x एंड प्लस 3। अब यहाँ पे देखो मैं पहले ABC का वैल्यू लिखता हूँ। वैल्यू ऑफ द A इज 2 एंड वैल्यू ऑफ द B इज 3 रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ C इज 3। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है, A और C को मल्टीप्लाई करना, तो A और C को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 रूट 3 को मेरे को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 6 आना चाहिए और ऐड करने पे आपको 3 रूट 3 आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ट्राई टू लिसन इज वेरी केयरफुली। आप 3 रूट 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे और उसको ऐड भी करना है, तो आप ये क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि हमेशा लाइक टर्म्स आर गोइंग टू बी एडेड एंड लाइक टर्म्स आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे लाइक टर्म कहने का मतलब है अगर 2a है तो इसमें मैं 4a को ऐड कर सकता हूं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 6 है। अगर मैं 2a में अगर मैं 2b को ऐड करूंगा तो वो कभी ऐड नहीं होगा क्योंकि 2a और 2b अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे 3 रूट 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, उसको ऐड करके 3 रूट 3 भी आना चाहिए। तो 100% इन दोनों टर्म में आपको रूट 3 और रूट 3 अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि रूट 3 और रूट 3 होंगे तभी वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, अभी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट 3 इंटू रूट 3 यू विल गेट ओनली द 3 और इसको ऐड करने पे 1 रूट 3 कितने आ जाएंगे, 2 रूट 3 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 2। अब मैं मल्टीप्लाई कर देखता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 यू विल गेट 3 और 2 इंटू 1 2। देखो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे से दिखाता हूं। रूल क्या होता है कि रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर के नंबर साथ मल्टीप्लाई, रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 एंड रूट 3 इंटू 3 3, तो यू सी 3 2 जा 6, तो आपको यहाँ पे 6 मिल गया और यहाँ पे 2 रूट 3 और 1 रूट 3 को आप ऐड करोगे तो 3 रूट 3 भी मिल जाएंगे। तो वी कैन जस्ट स्प्लिट 3 रूट 3 एज अ 2 रूट 3 एंड रूट 3। तो यहाँ पे 3 रूट 3 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 रूट 3x और रूट 3x प्लस 3। अब आप देखो ये 3 टर्म को मैंने स्प्लिट करके 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सी व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द वेरी फर्स्ट 2 टर्म। तो व्हाट आई सी, द 2 इज द कॉमन
एंड x इज कॉमन, तो 2x मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और यहाँ पे x जा चुका है, सिर्फ √3 बचा। नाउ इन दोनों पार्ट में, अब इन दोनों पार्ट में अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये जो 3 है, अगर मैं इस 3 को, अगर मैं √3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे को यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 है, इट इज नॉट द √3, वी कैन राइट इट एज अ √3 होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर देखता हूं तो यहाँ पे इन दोनों से √3 कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों से मैंने अगर √3 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से एक √3 जा चुका है, तो यहाँ पे एक √3 बचा। नाउ यू सी द ब्रैकेट आर एग्जैक्टली सेम। आई टोल्ड यू दैट द ब्रैकेट शुड बी लाइक अ कार्बन कॉपी। नाउ इन दोनों टर्म्स में यू विल सी दैट x plus √3 is a common, so what is left here? 2x and here √3. So this is the factorization of this term. Now one more question I am going to solve for the root one. You see that 2√3x and here plus x minus 5 √3. Same type we are going to do. Do not hesitate. Now the value of the a is 2 √3, value of b is here what? Coefficient of x, that is a 1, and constant is minus 5 √3. तो same thing we have to do, multiply a and c. तो a into c, तो a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था रूट्स वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आउटसाइड इज मल्टीप्लाई विद द आउटसाइड एंड इनसाइड इज मल्टीप्लाई विद द इनसाइड। तो 2 into minus 5 minus 10, √3 into 3 that is a 3, minus 10 into 3 minus 30। तो a और c का मल्टीपल आपको आ रहा है 30। अब यहाँ पे b है, तो b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट के इनके मल्टीपल आपको -30 होना चाहिए और ऐड करने पे 1 होना चाहिए। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव होना है तो आपको एक नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा, और आप ये देखो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि वो दो नंबर जो होते हैं एक दूसरे के कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, मतलब लगातार होंगे। 6 7 7 8 9 10 13 14 ऐसे कंसेक्यूटिव होंगे। तो आप देखो 6 5 30, ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए था, +1, तो इसलिए मैंने छोटे वाले टर्म को माइनस साइन दिया। तो 6 5 30 हो जाएगा, और ऐड करने पे आपको यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो x को मैंने स्प्लिट किया है 6x - 5x। मैंने पहले ही बताया था, आप इसको पहले बाद में लिखो, फाइनल आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ अब इसके बाद देखो कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है जनरली मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर लेते हैं, लेकिन कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे आपको सिखाया कि कैसे यहाँ पे 3 को मैं यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो वैसे मैं आगे के टर्म को भी स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2√3x² को एज इट इज लिखा है। 6 को मैंने लिखा है 2 into 3, बिकॉज 2 into 3 तो 6 ही होता है, और इसको x, और यहाँ पे -5x, और यहाँ पे -5 √3। अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों में मैं कॉमन देखता हूँ, 2 तो बिल्कुल ही कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं आपको जस्ट यही बताया था कि ये √3 यहाँ पे 3 नहीं है, ये एक्चुअली √3 का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों से मैं √3 को भी बाहर निकाल सकता हूँ, और x भी कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे 2√3x आ गया है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 जा चुका है, तो एक √3 बचेगा, मतलब x plus √3। Now in these two part what I see that the minus is common and also the 5 is common, तो -5 taken out, तो what is left here, x, और यहाँ पे -5 जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा, +√3। Now you see the both the bracket are exactly same, the carbon copy। तो what I'm going to take it out, x plus √3 को मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3x, और यहाँ पे -5। तो this is the factorization of these term. One more question I am going like to discuss of the √5x² plus 2x minus 3 √5। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -3 √5। अब वैसे ही पहले a और c को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a और c को मल्टीप्लाई करूंगा √5 इंटू -3 √5। तो रूल बिल्कुल वही सेम है, आउटसाइड नंबर मल्टीप्लाई विद द आउटसाइड द रूट, इनसाइड मल्टीप्लाई विद द इनसाइड। 1 मल्टीप्लाई बाय द -3, तो -3, √5 मल्टीप्लाई विद द √5, तो 5, एंड -3 इंटू 5 दैट इज द -15। अब +2 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट आंसर भी आपको -15 चाहिए। तो उसमें 100% एक टर्म नेगेटिव होगा, एक टर्म पॉजिटिव होगा, और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर ऐड करने पे आपको +2 चाहिए। ओके, तो 5 3 15, वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 2 है। तो मैंने स्मॉल नंबर को नेगेटिव में रखा है, तो 5 इंटू -3, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2x से स्प्लिट किया है 5x + 5x -3x में। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखता हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही, यहाँ पे √5x² है, यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। यहाँ पे आप 5 है, दोनों में आप कॉमन देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में से कॉमन में क्या निकाल सकता हूँ, आप यहाँ से यहाँ से इन दोनों से कॉमन आप √5 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, x, और यहाँ से आप √5 जा चुके हैं,
और x जा चुका है, तो सिर्फ एक √5 बचा। इन दोनों से आपने -3 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा √5। ओके, नाउ इन दीज टू पार्ट x प्लस √5 इज अ कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर √5 minus 3. So this is the factorization of these terms. Okay, now another type of question that I'm going to see here 2 into x plus y whole square minus 9 into x plus y minus 5. अब इस टर्म को मेरे को फैक्टराइज करना है, तो आप ये देखो कि ये टर्म पहले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x प्लस वाई को सीधा सीधा एज्यूम करता हूँ a। तो अगर x प्लस वाई को सीधा अगर एज्यूम करता हूँ a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a, तो बाहर से स्क्वायर है तो यू कैन राइट हियर a स्क्वायर एंड 9 इंटू a एंड -5। अब देखो ये एकदम बिल्कुल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के टाइप से आ गया है। आप यहाँ पे मिडिल टर्म को बिल्कुल आराम से स्प्लिट कर सकते हो। तो आप यहाँ देखो -5 इंटू 2 आपको कितना आंसर आ जाएगा 10, मतलब -9 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, और यू कैन राइट हियर -10a एंड प्लस a। अब यहाँ पे दोनों से कॉमन क्या निकला 2a। अब इन दोनों से यहाँ पे क्या बचा आपके पास a और यहाँ पे क्या बचा 5। इन दोनों से मैंने +1 कॉमन निकाला तो a - 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो मैंने ब्रैकेट को बाहर निकाला a - 5, यहाँ पे क्या बचा 2a + 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में मैंने कॉमन निकाल के अभी a के फॉर्म में रखा है, बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन इन द a फॉर्म, इट इज गिवन इन द xy फॉर्म। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस द a विद द x एंड y। तो वैल्यू ऑफ द a इज व्हाट x प्लस वाई, तो मैं a के प्लेस में यहाँ पे x प्लस वाई रखा हूँ, और यहाँ पे 2 इंटू अगर x प्लस वाई रखोगे तो आप 2 इंटू अगर यहाँ पे x प्लस वाई रखोगे तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2x और प्लस 2y और प्लस 1, तो यू कैन सी 2x प्लस 2y 1। So this is the factorization of these terms. Now I'm just giving you few questions to solve as a homework. Thank you.